ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہاں، بات شروع کرنے سے پہلے میں اصول بتا دے رہا ہوں، کیونکہ تم بولتے ہو۔ سنو، بات میں جواب سب دیں گے، پہلے اصول، پہلے میں بول رہا ہوں بیچ میں جس کو لائن پہ لیا ہوں وہ 2 منٹ طے کریں گے۔ تمہارا 2 منٹ ہونے کے بعد وہ اطلاع کر دیں گے، اور پھر میرا جب 2 منٹ ہو جائے گا وہ بھی اطلاع، ٹائم، وقت دیکھیں گے، وقت کا خیال وہ کریں گے، اور ہم بولتے رہیں گے۔ جب 2 منٹ ہو جائے آپ خیال کرنا اپنا 2 منٹ ہونے سے پہلے بات ختم کرنا، اور میرا بھی 2 منٹ ہونے سے پہلے میں بات ختم کروں گا، اور موضوع سے ہٹنا نہیں۔ موضوع جس موضوع پہ بات کرو گے اسی موضوع پہ بات ختم ہوگی، دوسرے موضوع پہ جانے والے وہ شکست خوردہ فرار مانا جائے گا۔ بتاؤ، اب تم بتاؤ کیا؟ ہاں، ابھی بات شروع کرو آپ، 2 منٹ میں گن رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کانفرنس میں لیا ہوں صادق بھائی، آپ وقت کا خیال رکھیے، اب 2 منٹ شروع ہو رہا ہے۔ ہاں اظہر سید، 2 منٹ شروع ہو رہا ہے تمہارا۔ 1 2 3 بولو۔ 9:32 میں کال کیا، میں نے تمہیں کیا کہ مجھے کسی موضوع پہ بات کرو۔ اب میں نے کال کیا، تم نے کسی کو لائن تو یہ مجھے بولا بھی نہیں، اور تم بول رہے ہو کہ یہ ٹائم کیپر رہے گا، کیوں رہے گا؟ اس نے اس کو متعین کیا، تم نے اپنے آپ سے اٹھا کس کو بھی لاتا ہے جو ہے کال کے اندر داخل کر دی، یہ ٹائم کیپر رہے گا۔ بھائی مجھے ایک بار نہیں کسی کو، میں تم سے بات کرنے کے لیے فون کیا ہوں، تم دن رات بندیوں کو چیلنج کرتے پھرتے ہو۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا ون آن ون میرے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ جو تمہیں تیسرا آدمی لانا پڑ رہا ہے بیچ میں بات کرنے کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم ہر مرتبہ کال کاٹ کے بھاگ جاتے ہو، میری بات سننے کے درمیان جب بھی میں بولتا ہوں تم بیچ میں بڑھانے لگتے ہو۔ اب بھی تم نے آدمی کو داخل کیا کال کے اندر، کانفرنس کی ہے، چلو خیر تم نے جب داخل کر ہی لیا ہے تو لوگ بھی دیکھیں گے کہ کس کے اندر کتنا جو ہے طاقت ہوتی ہے، ٹھیک؟ لہٰذا میں تم سے ایک شرط سے کافی بات کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے 2 منٹ کی شرط سے بات کروا، ٹھیک؟ اب یہ جو تیسرا آدمی ہے یہ بالکل جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ وقت کا خیال رکھ کے جو ہے دونوں کو جو ہے انصاف کے ساتھ ووٹ دے گا اور جو ہے خیانت نہیں کرے گا۔ اچھا، میں بات اس موضوع پہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ موضوع جو ہے حفظ الایمان کی عبارت پہ دن رات بڑھنے جو ہے، اور ان کا جو اعلیٰ حضرت تھا اس میں بھی جو حکم لگایا کہ یہ عبارت شکریہ ہے، تو یہ عبارت کے وجہ فکر کیا ہے، مجھے اس کی وضاحت کرو اور اس کو مدلل ثابت کر دے۔ چلو ختم ہوئی آپ کی؟ ہاں جی ٹھیک ہے، میں آپ 2 برابر ٹائم کا آپ بھی خیال رکھیے گا، میں بھی خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھو میری بات، ہاں آپ بھی خیال رکھیں گے۔ اب بیچ میں آپ پھر بول رہے ہو، میری شرط کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ میں تو ابھی دیکھو ڈرائیو کرتے کرتے بات کرتا ہوں، تو میں گھڑی کے اوپر میری نظر نہیں ہے، تو آپ لوگ جو ہے اپنا انصاف دکھا دو، اور مجھے امید ہے کہ تم لوگ جو ہے اس میں خیانت نہیں کرو۔ دیکھو خیانت، تم بھی ٹائم پہ دھیان دینا، تم کس حال میں ہو وہ ہم نہیں جانتے۔ یہ جو تیسرا آدمی ہے یہ بھی ٹائم کا پھر بھی بیچ میں بول رہے ہیں، بولنے ہی نہیں دے رہا ہے، یہی عادت ہے تمہاری، ہماری عادت نہیں ہے۔ ابھی ثابت ہو گیا کہ تم بولنے نہیں دے رہے ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تم کس حال میں ہے وہ ہم نہیں جانتے، تم کو بھی ٹائم کا خیال رکھنا، ہم بھی ٹائم کا خیال رکھیں گے، اور یہ تیسرے جو ہے وہ بھی ٹائم کا خیال رکھیں گے، کوئی بھی خیانت نہیں کرے گا، اور سامعین بھی جو سنیں گے ہمارے ریکارڈنگ وہ بھی دیکھ لیں گے کون خیانت کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اب تمہارے جو شرائط کے تعلق سے بات ہوئی، اب ہم 2 منٹ میں لے رہا ہوں، میرا جو تمہارا جو سوال ہے ابھی 2 منٹ ابھی سے شروع ہو رہا ہے۔ ہاں سنو، 1.5 منٹ ضائع کیا بریلیوں کی طرف سے ناانصافی، پہلا قدم دیکھیے کہ یہ 1 منٹ سے بول رہا ہے، میں خاموش تھا۔ ابھی ان کا جو ٹائم کیپر ہے وہ بیچ میں آ کے بولتا ہے کہ آپ کا ٹائم ابھی شروع ہے اور ابھی ٹائم گنا ہے، تو اس کا مطلب تو موضوع شروع نہیں ہوا تھا یار، سماعت فرمائے شروع نہیں ہوا تھا، وہ تو ابھی متعین کر رہے تھے نا یار، ٹائم کے میں پھر جب موضوع شروع نہیں ہوا تھا تو
तो फिर इस आपके मौलवी ने मुझको इल्जाम भी लगा के मैं बीच में मिलता हूँ। एक तो आपका ये मौलवी गलत है या फिर आप गलत है? नहीं तुम्हारी आदत है बीच में बोलने की ना। दोनों में से खयानत किसने की है बोलो? आप मौजू पर आओ, टाइम के मुताबिक बात नहीं दोनों, अभी तुमने बोला कि टाइम शुरू नहीं हुआ, तुम्हारा मौलवी बीच में बोल रहा। अब तुम बीच में शुरू नहीं होगा, हमारा टाइम शुरू नहीं होगा। सुनो, तुम बीच में बोलते रहोगे तो हमारा टाइम शुरू नहीं होगा। तुम खामोश हो जाओगे तो टाइम शुरू नहीं हो जाएगा। तो फिर ये 2 मिनट के बीच में बोलोगे तो फिर से 2 मिनट का बात करेंगे। झूठा है तुमने से, वो फैसला तुम करो। चलो नहीं, 2 मिनट के बीच में तुम बोलोगे फिर से 2 मिनट तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है। अब इसी तरह बात तुम सिर्फ वक्त बर्बाद करोगे। मैं 9:36 शुरू कर रहा हूँ, 2 मिनट खामोश रहो, फिर तुम 2 मिनट बोलोगे, मैं खामोश रहूंगा। अभी से शुरू हो रहा है मेरी बात, सुनो। तुमने कहा कि जलालुद्दीन चैलेंज करते फिरते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चैलेंज करते फिरता हूँ और तुम्हारे करमाला में आता हूँ तो तुम्हारे उलमा सब दिल में घुस जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते, कोई हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करते। ये एक बात। दूसरी बात ये, तुमने हिफ्जुल ईमान पर तुमने कहा कि कुफर की वजह क्या है। कुफर की वजह यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ को रजील चीज़ों से तशबीह देना, नबी की कोई भी मंसूबात को रजील चीज़ों से तशबीह देना, ये गुस्ताखी है, कुफर है। और गुस्ताखी को फतवा आलमगीरी में अदना गुस्ताखी को, नबी की मंसूबात की अदना गुस्ताखी को कुफर करार दिया है। फतवा आलमगीरी में हनफी मसलक के 500 उलमा ने कहा कि लौ काला नालुन नबी नुआइलुन फ़क़द कफ़रा, जिसने नबी की जूती की भी हल्की अल्फाज इस्तेमाल किया वो काफिर है, उसने कुफर किया। तो इसी तरह तुम लोगों ने जूती तो बहुत, नबी की जूती नबी के हिसाब से नबी के लिए अदना है, लेकिन नबी का इल्म नबी की शान है, नबी की शान की तुमने तौहीन की। जूती किसी की शान नहीं होते, इल्म उसके शान होते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म नबी के लिए शान है और उस शान की तुमने तौहीन की और कहा कि जैसा इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ऐसा तो पागल और जानवरों को भी है, रजील जानवर, आयरे गैरे, ज़ैद व अमर सबके लिए हासिल है। ये कहकर तुम लोगों ने कुफर किया। आप तुम्हारी बात शुरू करो, हमने वाजे बता दिया। तमाम साथी सुनने वाले इन हजरत की बात को सुनो। ये इन्होंने इस बात को तस्वीर देके चैलेंज करते हुए और इतने चैलेंज बावजूद इनका इल्म भी हाल ये कि इन्होंने जिस इबारत के ताल्लुक से मैंने पूछा था उसके ताल्लुक से जवाब तो दिया, लेकिन जब इबारत पढ़ी तो अपनी तरफ से पढ़ी। ऐसी कोई इबारत उलमा अहले सुन्नत से, उलमा दुनिया से मुझे दिखा दे, कोई भी बदली तो उसको 1 लाख रुपए नगद इनाम दूंगा, जिसमें लिखा हो कि जैसा इल्म शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वैसा इल्म माज़अल्लाह ज़ैद व अम्र बल्कि सभी वो मशहूर बल्कि जमीन हैवानात को हासिल है। माज़अल्लाह जैसा इल्म रसूलुल्लाह को हासिल है वैसा इल्म, जैसे कि इन्होंने इबारत की। हालांकि ये इबारत उलमा ये इबारत पढ़ने की वजह ये है कि जो असल इबारत हिफ्जुल ईमान में दर्ज है वो इबारत के ऊपर इनके पास ऐसा कोई दावा नहीं है जिससे उसको वो शुक्रिया साबित कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से एक इबारत पढ़ ली। ठीक है, अलबत्ता सारे सामने इस बात को बगैर सुने कि इन्होंने क्या पढ़ा था, मैं रिकॉर्डिंग के अंदर जब इसको एडिट करूँगा और वीडियो जब यूट्यूब पे लगाऊंगा तो इस रिकॉर्डिंग का क्लिप काट करके आपको सुनाऊंगा, आप सवाल फरमाइए। दूसरी बात यह है कि मौलवी जलालुद्दीन साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो मुझे बताए कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला ज़ात के आला इल्म को या किसी भी आला इल्म, आला चीज़ को अदना चीज़ से तशबीह देने से क्या वो कुफरिया हो जाती है? ज़रा इसकी वजाहत फरमाएं कि अगर आला चीज़ को अदना चीज़ से तशबीह दी जाए तो क्या वो कुफरिया कहलाती है दीनी उसूल से, और क्या उस पर फतवा कुछ जाना चाहिए अगर कि वो किसी ही मसलक पर क्यों ना हो? चलिए आपका हो गया 2 मिनट। हाँ हो गया आपका 2 मिनट। अभी मैं बात शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये अपनी तरफ से इबारत पेश की है, अब मैं इबारत पढ़ूंगा और ये भी इबारत पढ़ के अवाम को समझाए। मैं भी समझा रहा हूँ अवाम को इबारत पढ़कर, जो मुतनाज़ इबारत है हमारे नज़दीक काबिल एतराज़ और कुफरिया इबारत है वो इबारत मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। यानी
आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, आपके ज़ात मुक़द्दस, यहाँ आपसे कौन मुराद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है, क्योंकि आगे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के ताल्लुक से बात हो रही है। अगर 4-5 लाइन ऊपर से भी पढ़ेंगे, ये स्क्रीनशॉट किताब के पेज का फोटो यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, सारे सामईन हजरात भी पढ़ लेंगे कि यहाँ पर हुजूर के इल्म के ताल्लुक से बात हो रही, किसी और के इल्म के ताल्लुक से बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। अगर बकौल गैब सही हो तो दरियाफ्त तलब अमर ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तफ्सीर। अगर बाज़ उलूम गैबिया हुजूर को हासिल है तो इसमें हुजूर की ही क्या तफ्सीर। ऐसा इल्म, यानी ऐसा करके जो लफ्ज़ कहा जाता है उसको आगे से जो इबारत है वो इबारत मुराद होता है, वो चीज़ें मुराद होता है। जिस चीज़ के बारे में पहले बताया गया है उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ऐसा इल्म से क्या मुराद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म जैसा ऐसा इल्म गैब तो ज़ायद उमर बल्कि सभी मजनून व जमीअ हयवान व बहाइम के लिए भी हासिल है। यानी जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ऐसा इल्म हर ऐरे गैरे को, पागल को, जानवरों को भी हासिल है। माज़अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इल्म पागल और जानवरों को हासिल है। और मैंने इबारत पूरा जैसा इबारत है ऐसा सुना दिया। अरे 2 मिनट हो गया, 10 सेकंड ऊपर ले लिया आपने। जी, आप भी 10 सेकंड ऊपर ले सकते हैं। चलो ठीक, मेरा टाइम अभी शुरू है भाई, टाइम के पास। ठीक है जी, अभी 9:43 हुआ है। हाँ ठीक है। मौलवी जलालुद्दीन साहब की बात आपने सुनी, उन्होंने इबारत को पढ़ करके सुनाया और उन्होंने वो बात कहीं भी हमें इबारत में नहीं दिखाई दी। उन्होंने कही थी कि अल्लाह के रसूल का जैसा इल्म शरीफ है ऐसा इल्म पागलों और जानवरों को है। माज़अल्लाह, जैसे कि इन्होंने पहली अपनी टर्म में कहा, और ना ही इससे इन्होंने रुजू किया और ना ही जो है इस बात की वजाहत की कि ऐसा जो इन्होंने इबारत निकाली है ये कहाँ से निकाली। ठीक है, ये जिन्होंने इबारत से पढ़ी है, हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत से पढ़ी है, लेकिन उसको ऐसे ही गलत करके पढ़ा जैसे मौलवी अब्दुल खान साहब ने गलत करके पढ़ा था। उन्होंने आखिरी की जो 2 लाइन है उसमें से चीज़ों को जो है हटा दिया और उनको जो है आधी इबारत पढ़ करके छोड़ दिया। वहाँ से इबारत खत्म नहीं थी जहाँ पर इन्होंने खत्म की। ठीक है, अलबत्ता मैं उनसे गुजारिश फिर से एक मरतबा करूँगा, और अगर अब ये अच्छी बार अगर ये इबारत को फिर से पेश नहीं करते तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला इबारत पूरी पढ़ करके सुनाऊँगा जैसे कि हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर दर्ज है। और वो इबारत जो इन्होंने हज़फ की उस इबारत को भी मैं पढ़ करके सुनाऊँगा जहाँ से मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इस बात की वजाहत की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वैद आलिमुल गैब कहता है तो इसके आलिमुल गैब कहने की वजह क्या है और वो वजह से आलिमुल गैब कहना दुरुस्त है या नहीं है, मैं इंशाअल्लाह ताला अगली टाइम में बताऊंगा। लेकिन फिर से एक मरतबा मौलवी जलालुद्दीन साहब की गुजारिश है कि हमारी किसी किताब के अंदर ये साबित करके दिखाएं, मैं 1 लाख रुपये इनाम दूंगा किसी भी बरेलवी को वो ये अल्फाज हमारी बात में दिखाए कि अल्लाह के रसूल साहब का इल्म शरीफ, इल्म मुबारक जो है किसी पागल या जानवर की तरह है। जैसे कि उन्होंने अल्लाह के रसूल की तरफ जो है झूठ मंसूब किया और उन्होंने जो का नाम उस पर लगा दिया। और मैं गुजारिश करूँगा सामाइन से कि मौलवी जलालुद्दीन साहब से आप भी जो है गुजारिशात करें, जब ये हमारी बात खत्म होती है, जब आप तक ये बात पहुँचे तो आप भी उनसे कॉन्टैक्ट करके इस इबारत का मुतालबा कर सकते हैं। चल मेरा टाइम। अच्छा, ये जो बताए हैं, पहली बात तो खलते मबहस करने की नाकाम कोशिश की। बताया कि आलिमुल गैब कहने के ताल्लुक से बात हो रही थी। हालांकि आलिमुल गैब पर हमारा क्या मौक़िफ़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इस ताल्लुक से दूसरी बात है और इस पर एतराज़ हमारा नहीं है। इस इबारत पर हमारा एतराज़ सिर्फ तशबीह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ को पागल और जानवरों के इल्म से तशबीह दिया गया है। इबारत पढ़कर भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं उसका तर्जुमा करके समझा कर बताया और देवबंदी को हिम्मत नहीं है इस इबारत को समझा कर बताए।
समझाने की हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ बार बार दोहराते हैं और आवाम की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश करते हैं। देखिए जो इबारत किताब में मौजूद है वही इबारत मैं अच्छी तरह आराम से एक एक लफ्ज पढ़कर आपको समझा रहा हूँ। हाँ, आप ठीक से सुनिए कि इबारत में क्या लिखा हुआ है। इबारत में लिखा हुआ है, आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। आपके ज़ात मुक़द्दसा मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुक़द्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। अगर बकौल ज़ायद सही है, यानी ज़ायद की बात यहाँ ख़त्म हुई, ज़ायद की बात अगर सही है तो इसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस। दरियाफ्त तलब अमर यह है, इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस, यानी हुजूर की इल्म गैब पर अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, और बाज़ उलूम गैबिया हम भी मुराद लेते हैं ज़ात इलाही के एतबार से, अल्लाह ताला के उलूम के एतबार से हुजूर का उलूम कुल नहीं है, बाज़ है, और बाज़ उलूम गैबिया ही हम भी मुराद लेते हैं। हाँ, मखलूक़ात का कुल है और खालिक का बाज़ है, और बाज़ उलूम गैबिया अगर मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तख़सीस। बाज़ उलूम गैबिया देवबंदी भी मानते हैं और इसमें हुजूर की तख़सीस को इनकार किया है और हुजूर के इल्म को पागल और जानवर के इल्म से तशबीह दिया है। ऐसा इल्म तो पागल को भी है, जानवर को भी है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद उमर बल्कि सभी मजनून जमीन हयावान और के लिए भी हासिल है। अरे टाइम कीपर भाई क्या हो गया? हो गया, बोलो। टाइम कीपर क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ बोलो बोलो। अरे तुम खामोश रहो, टाइम कीपर का है। बोलो। अरे तुम खामोश रहो, टाइम कीपर का है, मैं टाइम कीपर से पूछ रहा हूँ। टाइम है आपका 9:48। भाई आप इनको रोकते क्यों नहीं है? आप उनका भी बोले बोलो तुम 20 सेकंड ज्यादा बोल लेना। जलालुद्दीन साहब ने फिर वही हरकत की जो हमेशा करते हैं। मैंने सिर्फ इतना का पूछा था कि आपने जो दावा किया है वो हमारी कौन सी किताब से। इन्होंने इसको पेश नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम आवाम की आंखों में धूल, आवाम जो सुनने वाली है वो समझ ले कि आंखों में धूल कौन ढूंढ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमने कभी भी किसी मुसलमान की आंखों में धूल नहीं झोंकी। और आप सबके सामने ये बात है कि मौलवी जलालुद्दीन साहब ने एक तरी झूठ बोला और ना उसको रुजू किया, और दरमियान गुफ्तगू में उनकी जबान इतनी फिसल हुई कि उन्होंने बाज़ उलूम कह दिया खालिक के लिए कहा और कुल उलूम कह दिया मखलूक़ात के लिए कह दिया। और इससे मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप तौबा कर लें, अगरचे अनजाने में ही इससे क्यों ये अल्फाज लगाना हुए, लेकिन इन पर तौबा लाजिम। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब इनके पास ऐसी कोई इबारत नहीं थी तो इन्होंने झूठ क्यों बोला मौलाना अशरफ अली थानवी की तरफ से। वहाँ पे यूँ लिखा हुआ है या इस वजह से हम कहते कि उस इबारत में ये लिखा है कि अल्लाह के का इल्म शरीफ पागलों और जानवरों की तरह है माज़अल्लाह, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अब सामने तीसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि आलिमुल गैब का जो है बहस के बीच में लाना ये खल्क़ मबास। हालांकि इबारत का जो सवाल है, सवाल ही आलिमुल गैब के ताल्लुक से हुआ है। अगर के मौलवी जलालुद्दीन साहब को इसमें पढ़ने की तौफीक ना मिली है तो अगर ये सवाल पढ़ेंगे तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हुस्न ईमानी जो सवाल है वो सवाल के अंदर ही आलिमुल गैब की बहस है। अलबत्ता जब जवाब दिया मौलाना ने पहला तो पहले जवाब तो इनका एतराज़ नहीं था। ये दूसरा जो जवाब है उस जवाब के आखिर में भी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की वजाहत फरमाई कि अगरचे ये ठीक है, जैसे कि पिछली इबारत जो है मौलवी जलालुद्दीन ने पढ़ करके सुनाई, तो आगे मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि अगरचे ये बात मानी जाए तो फिर तमाम को ही आलिमुल गैब कहा जावे। ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया है उस इबारत के अंदर। तो ये इनका ये कहना है कि भाई ये इबारत आलिमुल गैब के ताल्लुक से इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये खुद जो है हमसे मबाहत है और ये खुद इन्होंने इबारत को ठीक से पढ़ा नहीं है। लिहाजा ये कहते हैं कि आलिमुल गैब से हमारी कोई बहस है, ये नहीं वो नहीं। तो मैं इनसे कहता हूँ कि जिस मौजू पे आपको इस तरह से आपने ये बात पेश करनी है और उसको साबित करना है
और आप मुझे झूठ बोला रुजू करना है। चलिए भाई, आपका हुआ टाइम है। देखिए जलालुद्दीन आगे बढ़ो। देख लीजिए तो बराबर चल रहा है। ये देखिए बार बार अपनी किताब का इनकार कर रहा है, इबारत का इनकार कर रहा है और 1 लाख रुपया इनाम का ऐलान कर रहा है। सामीन हजरात, इसके एड्रेस पे जाकर, फ़ोन नंबर स्क्रीन पे दिया जाएगा, इसके एड्रेस पे जाकर 1 लाख रुपया इससे हासिल करें। हाँ, और 1 लाख रुपया दिलाएं मुझे बेशक। और ये देखिए किताब में हिफ्जुल ईमान पेज नंबर 15, हिफ्जुल ईमान अशरफ अली थानवी लिखे हैं और इसके पेज नंबर 15 पर लिखी हुई इबारत हैं। और इस इबारत पर आलिमुल गैब के ताल्लुक से ही सवाल किया गया, लेकिन हमारा एतराज़ सवाल पर भी नहीं है, जवाब पर भी एतराज़ नहीं है। हाँ, और जो आलिमुल गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने के ताल्लुक से बात हो रही है, जो जवाब दिया उस जवाब पर भी एतराज़ नहीं है, सवाल पर भी एतराज़ नहीं है। हमारा सिर्फ एतराज़ हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम को पागल और जानवरों के उलूम से तशबीह देना ही कुफ्र है। और यहाँ तशबीह है और इन्हीं की किताब में खुद अशद्दुल अज़ाब अला मसीहिल कज़्ज़ाब में खुद लिखे हुए हैं इनके मौलवी मुर्तज़ा हसन दरभंगी ने कि अगर इस इबारत पर आला हजरत काफिर नहीं कहते तो खुद काफिर हो जाते। यानी अशरफ अली थानवी इस इबारत पर ऐसा काफिर है जैसा इस इबारत में अशरफ अली थानवी ऐसा काफिर है कि उसको काफिर ना कहने वाला काफिर हो जाता है। खुद देवबंदियों की गवाही है। और दूसरा इनकी किताब है शिहाबुस साकिब वाला भी इस इबारत का इकरार किया है और कहा है कि यहाँ तशबीह मुराद नहीं है, मिक़दार मुराद है। अगर तशबीह होती तो कुफ्र होता। और ताज्जुब की बात यह है कि एक मौलवी कहता है कि यहाँ पर मिक़दार होता तो कुफ्र होता, दूसरा मौलवी कहता है तशबीह होती तो कुफ्र होती। हालांकि यहाँ तशबीह भी है, मिक़दार भी है। मिक़दार बोले तो इल्म का अंदाज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा इल्म माअज़ल्लाह पागल और जानवरों को हासिल है, ऐसा लिखकर अशरफ अली थानवी बदतरीन कुफ्र किया है और आज तक देवबंदी इस कुफ्र को नहीं उतार सके और ता क़यामत उतार नहीं सकेंगे। ये अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाहि अलैह कहकर माअज़ल्लाह ये खुद जहन्नम के ईंधन बन रहे हैं, खुद अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं। जी, बात मेरी खत्म हुई, बताओ। सामीन ने इन साहब की बात सुनी है। ये बरेलवियों के मुनाजिर अपने आप को कहते हैं। अल्लामा चांदपुरी की एक इबारत इन्होंने पेश की कि देखो यहाँ पे उन्होंने मौलाना अशरफ अली थानवी की इबारत को नकल करके उसको किया था। इनका ये दूसरा झूठ है। हालांकि उन्होंने वो इबारत नकल की जो अहमद खान बरेलवी ने अपने हुसामुल अमैन के अंदर तहरीर करके उससे कहा था कि ये शुक्रिया है, क्योंकि उसमें भी मौलवी जो अहमद खान है उसने भी यही हरकत की थी जो जलालुद्दीन साहब ने की है कि उसने भी इबारत को काट छाट करके जो है अरबी में पेश किया था और आगे की इबारत को हज़फ कर दिया था और सवाल को भी हज़फ किया था और जितनी वो चाहता था उतनी ही इबारत को नकल किया। और अल्लामा चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी के बारे में फरमाया है कि ये जो इबारत है ये कुफरिया है, यानी जो अहमद खान साहब ने वहाँ से माखूज की अपनी तरफ से और उससे फतवा लाया है और झूठ बांधा है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से। अलबत्ता मैं चूँकि ये इनका नाम जो भी है जलालुद्दीन साहब, इनसे मैं जो है गुजारिश करूँगा कि इन्होंने जो इबारत पढ़ी है आखिरी मरतबा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अब मेरे सामने इबारत मौजूद है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, फिर मैं इसके बाद जो है वो इबारत पढ़ करके सुनाऊंगा और उसका माना वो मफहूम भी सुनाऊंगा। और इन्होंने एक बात ये कही कि एक किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई देखो यहाँ पे अगर मिक़दार मुराद है तो कुफ्र होगा और दूसरी जगह लिखा है कि यहाँ पे अगर तशबीह मुराद है तो कुफ्र होगा। ये जवाब भी मैं इनको देता हूँ कि यहाँ पे मिक़दार अल्लाह के रसूल के इल्म की नहीं बल्कि बाज़ उन्होंने गैबिया की मिक़दार के ताल्लुक से है और तशबीह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कही जा रही कि अगर यहाँ पे तशबीह होगी तब कुफ्र होगा। और दूसरी इबारत में जहाँ पे तशबीह कहा जा रहा है वहाँ पे तशबीह से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म नहीं है जो ये फरमा रहे हैं यहाँ पे जलालुद्दीन साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा जैसे कि उन्होंने पहले झूठ बोला था उस झूठ को साबित करें और अगर ये झूठ अपनी बात को साबित करते हैं तो मैं 1 लाख रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूँ
और ये सारी बातें यहाँ वहाँ की करेंगे, लेकिन हिज़्बुल ईमान को जो है कुफरिया इबारत साबित नहीं कर पाएंगे। क़यामत आ सकती है, लेकिन कोई बरेलवी जो है दुनिया के अंदर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस इबारत को जो मौलाना अशरफ अली थानवी भी है उसको कुफरिया साबित कर सके। अभी मैं आखिरी बार इस बार मैं जितनी देर समझाना पड़े उतनी देर समझाऊंगा, 2 मिनट या 3 मिनट तक भी हो सकता है, और बाद में इनको भी 3 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा। आखिरी बार इबारत पढ़कर ये समझाएंगे, हाँ इबारत पढ़कर समझाएंगे। और ये देवबंदी ने ऐसा कहा जैसा कि लोग कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तो ये देवबंदी इनको कहीं से जवाब नहीं मिल रहा है, इधर उधर की बात करके सिर्फ वक्त जाया करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सामीन हजरात, इन्होंने कहा कि मिकदार मुराद है, लेकिन यहाँ पर बाज़ उलूम के मिकदार है। तो बाज़ उलूम किसका? जायद उमर का, बकर का, ये अजहर देवबंदी का, जलालुद्दीन का, किसी इल्म तो किसी का है, किसी ना किसी का है ना। इल्म एक सिफात है, सिफात के लिए मौसूफ होना जरूरी है। अब ये देवबंदी ये नहीं कह रहा ये बाज़ उलूम किसका है, बाज़ उलूम या कुल उलूम, तो उलूम किसका है, मौसूफ होना चाहिए ना। यहाँ पर जब बात चर्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के चर्चा आ रहे हैं, तो इल्म सिफात है और सिफात का मौसूफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ उलूम की यहाँ पर मिकदार बताया जा रहा है। कितना मिकदार, कितना उसका पैमाना कितना है, उस लिमिट कितना है? लिमिट इतना है कि जितना इल्म पागल और जानवर को है इतना इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, माज़अल्लाह। यानी इतना कहकर और बड़ा कुफ्र कर दिया। इनके जो शेखुल हिंद हुसैन अहमद चांदोवी गालीबाज 200 से ज्यादा गालियां दी शहाबुस साकिब में, उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि अगर मिकदार मुराद लिया जाए तो कुफर हो जाएगा। यहाँ मिकदार मुराद नहीं है, यहाँ तस्दीह मुराद है। और असदुल अज़ब में लिखा है, में लिखा है यहाँ पर मिकदार ही मुराद है, तस्दीह मुराद है तो कुफर होगा। हाँ बोलो। तो देखिए सामईन हज़रात, ये जो हमारे मौलवी जलालुद्दीन साहब है, इन्होंने जो है इबारत पे पहली मरतबा तो झूठ बोला, दूसरी बार जो है फिर झूठ बोला अल्लामा चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह से कि उन्होंने इस इबारत पे जो है फतवा दिया है। हालांकि इबारत पे वो जो हिज़्बुल ईमान में है उस पर फतवा नहीं दिया गया, बल्कि उस इबारत पे फतवा दिया गया जो मौलवी अहमद रज़ा खान साहब ने अपनी तरफ से जो है लिखी हुई थी। अब हिज़्बुल ईमान के सफ़ा नंबर 15 पे क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इस यहाँ पे जो एतराज़ करते हैं बरेलवी, वो ये इबारत है तो ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बक़ौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैब या मुराद है तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म से ज़ैद व बकर बल्कि वो बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मगफी है। तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। ये इबारत यहाँ पे ख़त्म है। हालांकि बरेलवी अहमद रज़ा खान ने या ये मौलवी जलालुद्दीन ने ये आधी इबारत पढ़ी और आधी छोड़ दी। अब मैं आपसे कहता हूँ सामईन सुनने वालों, इस इबारत को समझो। इस इबारत में वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पे इल्म गैब का हुक्म किया जाना, अगर बरेलियों के यानी ज़ैद और शिया यानी जो ज़ैद है ये बरेलवी या शिया अक़ीदे वाला है, तो इसके बक़ौल अगर अल्लाह के रसूल पे इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर दुरुस्त है तो दरियाफ़्त तलब अम्र ये है कि गैब से मुराद क्या है। जिस गैब की वजह से अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब कहते, उस गैब से मुराद क्या है? क्या ये कुल गैब है या अगर उल्टे नहीं है, बरेलवी खुद मानते हैं कुल गैब नहीं है। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, बाज़ उलूम गैबिया की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मान रहे हैं, तो बाज़ उलूम गैबिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख़सीस कि इसकी वजह से उनको आलिमुल गैब माना गया। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख़सीस तो बहुत आला है। अल्लाह के रसूल के पास तो ऐसा इल्म है जो कि तमाम मखलूक़ात के पास नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल का इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास सबसे आला है। और ये बरेलियों ने आम बाज़ उलूम गैबिया के वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब करार दिया और इस वजह से आलिमुल गैब मान के जो है अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करी है। ये इबारत तौहीद पे मबनी है। देखिए बरेलियों के आला हजरत ने शैतान के लिए इल्म गैब माना है,
बाज़ इल्म गैब, इसलिए हम कहते हैं कि बाज़ इल्म गैब की वजह से अगर के किसी को आलिमुल गैब कहा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें तखसीस नहीं रह जाती। जैसे किताब के अंदर इसकी वजाहत फरमाई है, ऐसा इल्म गैब शैतान को भी इल्म गैब दिया है। हो गया जनाब, आपका ऊपर गया है आपका। जलालुद्दीन साहब के 15 सेकंड में लेना चाहूँगा। चलो, इन्होंने एक बात ये कही थी जो इबारत मैंने समझा दी, और आगे मैंने भी बताया कि देखिए सामईन हज़रात, मैंने 15 सेकंड में आपको आखिर में ऐसा ही हुआ। 1 मिनट देने के बाद ये मुकर रहे हैं सामईन, देखे 1 मिनट इन्होंने दिए फिर मुकर गए। हाँ बोलो, इसमें बोलने लगे। अभी मेरा 1 मिनट शुरू हो रहा है। इन्होंने इबारत का वो हिस्सा नहीं पढ़ा। आप सारे जो लोग हैं ये जो है मुलाहिजा फरमाए कि इन्होंने इस इबारत का वो हिस्सा क्यों नहीं पढ़ा, जिस हिस्से से पता चलता है कि मौलाना अशरफ अली थानवी जो है आलिमुल गैब के ऊपर बात कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल की बरेलवी भी आलिमुल गैब नहीं मानते। तो ये इबारत का जो हुक्म या इतलाक हो या तशबीह हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानना इनकी अहमकाना हरकत होगी, क्योंकि ये खुद आलिमुल गैब नहीं मानते। और अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है ये वाज़ेह फरमा रहे कि क्योंकि जो इबारत के आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी हो, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। ठीक है, ये एक बात जो है इन्होंने हज़रत की, इनके आला हज़रत को भी हज़रत की। अब ये कहते हैं कि भाई ऐसा का जो ज़मीर है अल्लाह के रसूल के इल्म की तरफ लौट, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा का जो ज़मीर है वो बाज़ मुतलक इल्म की तरफ लौटा है। ये कहते हैं कि भाई इल्म किसका है, हो गई 1 मिनट भी हो गया। कहते हैं कि बाज़ मुतलक मिनट होने के बाद एक्स्ट्रा दिया, खत्म हो गए। और सारे इस बात को भी देखे ऐसा हमेशा की तरह है और मिकदार कितना समय लेंगे अभी भी मेरा खत्म नहीं हुआ था कि हो गया। ये ऐसा इल्म गैब सामईन हज़रात, ऐसा इल्म गैब यानी मिकदार, पहले इसने कहा कि मिकदार यहाँ मुराद है और मिकदार बाज़ उलूम गैबिया की मिकदार, तो बाज़ उलूम गैबिया एक सिफात है, थोड़ा है या ज़्यादा सिफात है। और सिफात मौसूफ के साथ, मौसूफ के बगैर सिफात नहीं होता। सिफात का कोई मौसूफ होते हैं, यानी मौसूफ के जरिया से ही सिफात का इजहार होता है। मौसूफ मतलब कोई भी, जैसा आलिम है तो इल्म उनका सिफात है, तो इल्म किससे जाहिर होगा, आलिम से जाहिर होगा। तो आलिम मौसूफ है और इल्म सिफात है। तो आप यहाँ सिफात जाहिर कर रहा है कि हुजूर का इल्म नहीं है या बाज़ उलूम गैबिया। कितने बड़े बेवकूफ़ जाहिल है देवबंदर, सारी दुनिया के लोग हंसेंगे और इनकी जहालत पर, इनकी नादानी पर और इनकी अय्यारी और मक्कारी पर सारी दुनिया के लोग मातम करेंगे और सारी दुनिया के जितने देवबंदी हैं शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। कितने बड़े जाहिल नादान हैं। यानी सिफात सिर्फ जिक्र कर रहा है, मौसूफ का जिक्र नहीं कर रहा है। हालांकि कहीं सिफात का जिक्र होगा तो सिफात के जिक्र के साथ मौसूफ का जिक्र लाजिम आता है। सिफात ही मौसूफ का मजहर है सिफात। यानी आलिम इल्म जाहिर करेगा तो जो चीज जाहिर करेगा वो चीज किसका होगा, मौसूफ का होगा। यानी बाज़ उलूम गैबिया जो कह रहा है, बाज़ उलूम गैबिया किसकी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ उलूम गैबिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ उलूम गैबिया को एक मिकदार बताया, अंदाजा, पैमाना, लिमिट। और उस लिमिट, कितना लिमिट है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा इल्म है। और ये आखिर का तर्जुमा नहीं किया इसने, समझाया नहीं आखिर में। ऐसा इल्म गैब पागल को भी हासिल है, जानवर को भी हासिल है। ऐसा का कितना, जितना इल्म हुजूर को है माज़ अल्लाह, इतना इल्म पागल को भी है, जानवर को भी है। हर ऐरे गैरे ज़ैद व उमर सभी व मजनून जमीअ हयावान व बहायम को भी हासिल है, माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस वजह से आज तक ये देवबंदी इस इबारत का दिफा नहीं कर सका और ता क़यामत दिफा नहीं कर सकता। अब बिला वजह आला हजरत पर बोहतान बांध रहे हैं। आला हजरत ने इबारत को सियाको सबक से हटकर, काट कर, छाट कर पेश किया है, यह बिल्कुल गलत है। आला हजरत ने वही इबारत पेश किया है, इबारत का जो मफहूम होता है वही मफहूम आला हजरत ने पेश किया है।
اور हुस्सामुल हरमैन खुद खोलकर हर कोई देख सकता है। ये देवबंदी जिस तरह आज धोखा देने की कोशिश किया, इसी तरह हुस्सामुल हरमैन पर बात करने में आवाम के सामने ऐसा धोखा देते हैं। हालांकि हुजूर के इल्म का ये पैमाना बता रहा है। अल्लाह ने मापने से मना फरमाया। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को इतना इल्म दिया, इतना नवाजा, अल्लाह खुद पैमाना बयान नहीं फरमाया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी आपका रुतबा हमने बुलंद किया। कितना बुलंद किया? अल्लाह ने पैमाना बताया, अल्लाह ने लिमिट बताया। अल्लाह ने लिमिट नहीं बताया तो देवबंदी कौन होता है नबी के इल्म को मापने वाले? तुम्हारे पास पैमाना है, तुम्हारे पास थर्मोमीटर है, तुम नबी के इल्म को माप सको? जिस नबी की कलमा पढ़ते हो उस नबी की, मैं जरा मेरा बयान खत्म करता हूँ। हाँ जी जी। नबी के इल्म को मापने के लिए दुनिया में किसी के पास पैमाना है, किसी के पास कोई मापदंड है, किसी के पास कोई थर्मोमीटर है? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। थर्मोमीटर तो जिब्रील को भी नहीं है। रिवायत में है, तफसीर में है, अल्लाह के नबी के पास जब अल्लाह ताला ने आयत भेजा अलिफ लाम मीम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर हुजूर को फरमाया अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फाहिमतु। यानी ये जो सीक्रेट बात है, ये अलिफ लाम मीम का जो इल्म है, अल्लाह ने जिब्रील को भी नहीं दिया। ये सिर्फ अल्लाह और नबी के बीच की बात है। इसलिए जब अलिफ लाम मीम अल्लाह ने कहा तो नबी समझ गए, जिब्रील ने नहीं समझा। तो जिब्रील को भी मापने के थर्मीमीटर अल्लाह ने नहीं दिया। ये देवबंदी कौन होते हैं? देवबंदी कौन से खेत के मूली हैं कि नबी के इल्म को मापे? जितना इल्म, ये रजील देवबंदी खुद कह रहे हैं जितना इल्म, और इनके दो मौलवी इसमें मुतजाद बयान कर रहे हैं। एक मौलवी कह रहा है यहाँ जैसा से मुराद जितना यानी लिमिट मुराद है यानी जितना, और जैसा से जैसा मुराद है यानी जिस कदर, जिस तरह, यानी जिस तरह का इल्म हुजूर को है इसी तरह का इल्म पागल को भी है, जानवर को भी है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप कोई देवबंदी मुझे बताए जितना इल्म हुजूर को है, क्या तुम पागल को, जानवर को हुजूर के जैसा जितना इल्म मानते हो, या फिर जिस तरह का इल्म हुजूर को है इस तरह का इल्म तुम जानवरों को, पागलों को मानते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि अना आलमुकुम बिल्लाह, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाला हूँ। और अल्लाह क्या है? गायब है। और यहाँ इल्म के साथ है। बाज़ देवबंदी धोखा देने के लिए कहते हैं इल्म गायब नहीं है, खबरें गायब है, खबर है। तो यहाँ पर इल्म आलमु, इल्म का सीगा है, अना आलमुकुम बिल्लाह, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाला हूँ। तो अल्लाह गायब है कि नहीं? अल्लाह को अगर गायब नहीं माने तो ईमान ही नहीं रहेगा देवबंदियों का, क्योंकि गायब पर ईमान लाने वाला ही ईमान है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गायब, वो मोमिन होता है जो गायब पर ईमान लाए। तो अल्लाह गायब है, और अल्लाह के बारे में सबसे ज्यादा इल्म किसको है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। तो यहाँ हुजूर खुद इल्म गायब का दावा फरमा रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का सहाबा इकराम खुद इल्म गायब मानते थे। सहाबा इकराम उम्महातुल मोमिनीन एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर, सारे उम्महातुल मोमिनीन हमारी माएँ फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दुनिया से जाने के बाद हम में से किसका इंतकाल सबसे पहले होगा? किसका इंतकाल सबसे पहले होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका हाथ सबसे लंबी होगी। तो आप ये बताइए, हमारी माओं का अकीदा था कि हमारे मौत के बारे में भी हुजूर जानते हैं किसकी मौत कब होगी। आप देवबंदी शान से दावा करते हैं, देवबंदी डंके के चोट पे दावा करते हैं, कहते हैं कि मौत किसकी मौत कब होगी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और सूरह लुकमान की आयत पढ़ के देवबंदी दलील देते हैं मौत के बारे में, किसी के मौत के बारे में अल्लाह ही जानता है, और ये हवा से खमसा, ये उलूम खमसा है, और ये गायब है, 5 गायब की कुंजी है। और इस गायब के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया। उम्महातुल मोमिनीन ने जब सवाल किया कि हम में से किसकी मौत होगी पहले, आप बता दीजिए, तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह कुरान में तो फरमाता है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم موت کے بارے میں علم نہیں ہے، اب تم کیسے سوال کر رہے ہو؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ ثابت کیا، فرمایا کہ تم میں سے اس کی موت سب سے پہلے ہوگی جس کا ہاتھ سب سے لمبی ہوگی، یعنی جو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہوگی وہ سب سے پہلے میرے ساتھ آ کر ملاقات کرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں دو نہیں بے شمار دلیلیں قرآن و حدیث سے میں پیش کر سکتا ہوں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث کتاب الصلاۃ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رکوع کو بھی میں جانتا ہوں، ما اخفى علیہ رکوعکم علی خشوعکم، تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہارے خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں. اب یہ بتائیے، رکوع ظاہری چیز کا نام ہے لیکن خشوع کس کا نام ہے؟ خشوع باطنی چیز کا نام ہے، غائب کی چیز کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل کی کیفیت غائب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تمہارے رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ میں جانتا ہوں. تو نبی کے علم اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے. اعلیٰ حضرت اسی علم کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ سے عیا نہیں. یا رسول اللہ، کائنات میں ہر ذرہ ذرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لیکن دیوبندی کہتے ہیں نبی کے جتنا علم پاگل کو بھی ہے، معاذ اللہ جانوروں کو بھی ہے. آپ خود ملاحظہ کر چکے ہیں. دیکھیے، اگر یہ دیوبندی کافر نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے. اگر دنیا میں کافر کسی کو مانتے ہیں تو سارے کافروں سے بڑا کافر یہ دیوبندی کافر ہے. اللہ تعالیٰ ان کافروں کی شر سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ان دیوبندی کافروں کے نصیب میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط کے جیسے ان کے اوپر عذاب مسلط فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.